Good morning, 12th class. Today I am going to give you the lecture on computer networking. Now let's start. The first question arises in our mind, what do we understand about networking? The simple answer is anything that is connected with anything that is connected on some of the network is called networking. कोई भी चीज़ जो आपके किसी नेटवर्क पे हो वो क्या कहलाएगी networking. Such as हम देखते हैं केबल टीवी, withdrawing money या cash from the ATMs, booking railway or airline tickets, sending or receiving messages to MMS or through the WhatsApp or through the messages. So जो ये services हम लेते हैं are provided by the collection of interconnected communicating networks. So this the data that is connected on the network are communicating through some communicating device, or this communicating device needs some transmission media. So we will study about all these prospects in this chapter. Now let us start. The very first basic definition is what is computer network. In the simple words, computer network is the connection of interconnected networks, but in a technical terms the definition is given here. You can note it down from this slide. A computer network is a collection of interconnected autonomous computer and other devices to share data and other resources. Like in our computer lab, there are so many computers, let's say 30, 20, 40. So all these computers are connected to the main one server through which you can share its software, you can share its hardware, anything. Okay? So now the question arises कि why do we need to build a network? What is the use of a network and why do we build it? The answer is these 3 points: sharing resources, improve communication, and reduce communication cost. Obviously, when you share something, so it reduce your labor also, it reduce your cost also, and you will get the benefit result in the smaller way. Yeah, like जैसे शेयरिंग रिसोर्स करते तो एज आई टोल्ड यू कि यू कैन शेयर द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओवर द नेटवर्क. You also improve the communication quality as well, and you also reduce the cost of the hardware and the software as well. Now, and also the cost of sending the audio and video. Clear? Now, components of network. What are the components of network? Components means कि जो उसको बनाते हैं तो वो क्या है? Sender, receiver, message, medium and protocol. Sender, that send the data, like WhatsApp पे या now I am creating the video for you, so that is I am the sender, and when you receive the video you are the receiver, that you receive the information. ठीक है? Message जो उस में मैंने जो the message I had sent, the information in it is known as the message. Message is the information to be communicated. It may be the text message or audio or video. Now, medium on which or through which medium I transfer this message to you. A transmission medium is a physical path through which the data flows from sender to receiver. Clear? There must be some medium now to transfer the message from sender to receiver. So this is known as medium. Protocol are the set of rules that governed by the government or the transmission media or something else. A set of rules that governs data transmission. It represents the communication methods which to be followed by the sending and receiving devices. Clear? No. Protocol means कि like अगर आपने कोई text भेजा है तो it must be in word document, it must be a PDF file. If you have sent in any image, तो it must be in JPEG form, it must be in GIF form, or it must be a PNG. So, and if you are sending the video, it must be MP4, it must be MPEG, MPG, it must be WMV, but it could not be MP3 because if it is MP3, then it becomes your what? Audio file. Clear? So there are some format that are governed to transmit the data over the transmission media. Clear? Now let's start. What is transmission media? What is transmission media? That required to transfer the data from sender to receiver. So what is required to connect computers? Transmission media में हमें क्या क्या required है? Here the definition is given. All the computers or communicating devices in the network must be connected to each other by transmission media or channel. The transmission media is a medium of data transfer over the network. The selection of media depend upon the cost,
अब आप वही बात है कि अगर आप जो मीडिया लेते हो वो उसकी कॉस्ट पे, अगर आप जितनी अच्छी मीडिया लगाओगे, जितना अच्छा आप ट्रांसमिशन मीडिया केबल लगाओगे, उतना अच्छा आपका डाटा ट्रांसफ़र होगा, उतनी अच्छी बैंडविड्थ से, इतनी स्पीड से होगा। तो ट्रांसमिशन मीडिया इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट्स। ट्रांसमिशन मीडियम में होती है गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड होती है आपकी वायर्ड और अनगाइडेड होती है आपकी वायरलेस मीडिया। गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिकल केबल, और अनगाइडेड में इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, सैटेलाइट्स एंड ब्लूटूथ एंड वाईफाई. And I think you all are aware about it, but now let's take a light on it. Now start. Twisted pair cable, as you can see here. Twisted pair or Ethernet cable is most common type of media which consists four insulated pairs of wireless twisted around each other. तो लाइक छोटी, जैसे मैंने आपको बताया था कि पुराने ज़माने में बल्ब होते थे, तो वो एक ट्विस्टेड वायर केबल में होते थे, ब्लू, रेड, ग्रीन, एंड उसके ऊपर बल्ब। तो अब उसके ऊपर थोड़ा सा शील्ड लगा के हमने इसको प्रेजेंट किया है। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है, इसकी लो कॉस्ट होती है, इसका लो वेट होता है, और ये फ्लेक्सिबल केबल होती है। तो ये ईजिली इंस्टॉल होती है, मेंटेन होती है, और रिक्वायर होती है फॉर RJ45 कनेक्टर के लिए। ठीक है, RJ45 कनेक्टर आपके हो गए, लाइक जैसे कि आप USB केबल लगाते हो, जो आप अपने इसमें लगाते हो कंप्यूटर के अंदर। देखो ये दिखाई भी हुई इन्होंने, देखो ये रही RJ45। ठीक है, UTP केबल के अंदर ये आपकी यूज़ होती हैं क्या, ट्विस्टेड पेयर केबल। तो डिसएडवांटेज क्या है कि ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो हमें रिपीटर्स चाहिएंगे, और इट्स सपोज लो बैंडविड्थ एंड ओवर अप 100 मीटर। ठीक है, इसकी लो बैंडविड्थ है, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ट्विस्टेड पेयर केबल एक शॉर्ट इसमें ही यूज़ होती हैं। क्लियर? Now coaxial cable, it is basically used in your cable TV. Clear? This type of cable consists of a solid, this type of coaxial cable consists of solid insulated wires surrounded by wire mesh. और इसके अंदर कोएक्सियल केबल और कोएक्स जो होती है वो केबल ट्रांसमिशन में यूज़ होती है, बहुत थिनेस्ट होती है और थिकनेस्ट भी होती है। तो ये आपका इस टाइप का केबल होता है। आपने कभी देखा होगा कि लाइक देखो ये दिखाया हुआ है इन्होंने कि इस टाइप से आपकी ब्लैक, एंड देन इसके अंदर शील्डेड केबल है, फिर इसके अंदर प्लास्टिक है, एंड देन वायर है। तो ये कंपैरेटिवली ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा अच्छी होती है, एंड ये लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए सूटेबल है, और फ्लेक्सिबल नहीं होती है ये, बिकॉज ये सॉलिड होती है। तो और ये कंपैटिबल नहीं है फॉर मॉडर्न UTP और STP के लिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। नाउ फाइबर ऑप्टिकल केबल, ये आपने देखा होगा आजकल जो हमारे लैंप्स वगैरह में यूज़ होती हैं। तो ये सिंगल मोडेड होती है, लेज़र और मल्टी मोड होती है। LED जो हमारे LEDs में और हमारे लेज़र लाइट्स में यूज़ होती हैं, ये ग्लास और प्लास्टिक की होती है। ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए वी कैन यूज़ इट। ये एक्सपेंसिव है, इसकी डिसएडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव है, ये ब्रेक हो जाती है, और कॉम्प्लिकेटेड इंस्टॉलेशन प्रोड्यूस एंड प्रोसीजर है, एंड डिफ़िकल्ट टू जॉइन टू ब्रोकन फाइबर्स। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर डोमेस्टिक पर्पस ड्यू टू हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। तो ये हमारा लाइक LED, LCD, TVs, ये अंदर हमारे मोबाइल्स के हमारे मोबाइल्स के अंदर उसके अंदर यूज़ होती है। क्लियर? नाउ अब आता है विच केबल मीडिया इज़ बेटर अबाउट फ्रॉम दिस ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर. तो here is a difference given to you. You can take the differentiation from here कि डाटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से ट्विस्टेड पेयर करती है, 100 मेगाबिट्स पर सेकंड के हिसाब से कोएक्सियल करती है, एंड ग्रेटर देन 100 GPS के हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर. क्लियर? नाउ अब आता है, अब हमने पढ़ा था ये तो थी गाइडेड मीडिया, अब आती है अनगाइडेड मीडिया, दैट इज़ वायरलेस मीडिया. वायरलेस मीडिया वो होती हैं जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं, लाइक योर वाईफाई, ब्लूटूथ, रेडियो वेव, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा. Now, अब उन्होंने here is the definition is given to you. Wireless network are being popular nowadays as these uses electromagnetic waves for communication. Wireless network devices are connected without physical medium. Obviously बात है. Wireless communication use radio wave, microwave, satellite and other short frequencies waves like infrared to transmit data. तो मॉडर्न लाइफ्स में हमारे ये सब यूज़ होते हैं. सेलुलर फ़ोन में हम यूज़ करते हैं वायरलेस मीडिया को. होम और बिजनेस में इंटरनेट और कनेक्शन होता है सैटेलाइट के ऊपर जो हम यूज़ करते हैं. बीमिंग डाटा बिटवीन 2 हैंडल कंप्यूटिंग डिवाइसेस के अंदर. वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस फॉर द PC. क्लियर? अब इंफ्रारेड रेज होती क्या है? इंफ्रारेड वेव network allow devices to communicate within a short range using wireless
वायरलेस सिग्नल्स, ठीक है। तो द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर इज सिमिलर टू दैट इन यूज्ड इन मॉडर्न रिमोट ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट लाइक टीवी कॉर्डलेस फ़ोन। इंफ्रारेड वेव्स जो है, लाइक आपका टीवी का जो रिमोट होता है उसके अंदर आप एक लाइट देखते हो, तो वो सेंसेस होती हैं। उस सेंसेस से आप अपना इंफ्रारेड रेज, मतलब कि आप दूर से ही इसको कनेक्ट करते हो थ्रू योर टीवी, तो आप रेडियो वेव्स के थ्रू से कनेक्ट कर रहे हो, तो आपने रिमोट से अपना टीवी आप ऑन करते हो। दीज आर द इंफ्रारेड रेज। क्लियर। तो फीचर्स ऑफ इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या है? लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, इसमें कोई गवर्नमेंट लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट क्रॉस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, और ये शॉर्ट रेंज के लिए बहुत अच्छे हैं, लाइक रिमोट एंड टीवी एंड टॉयज। क्लियर। तो ये इंफ्रारेड रेज बेसिकली यूज इन रिमोट टीवी रिमोट्स, टीवी के अंदर जो वो होता है, आपके टीवी के अंदर जो लाइट होती है वो, या आपके सेटअप बॉक्स में जो लाइट होती है वो, और टॉयज़ के अंदर इंफ्रारेड यूज़ होती है। नाउ माइक्रोवेव्स आर द हाई एनर्जी रेडियो वेव्स दैट यूज़ फॉर द लाइन ऑफ साइट। तो इसके अंदर जैसे एंटीना आ गए आपके, लाइन भी दीजिए, था जैसे कि हमारा D2H है, उसके अंदर हमारा माइक्रोवेव है। सुटेबल फॉर हाई स्पीड एंड लॉन्ग डिस्टेंस अप टू 100 किलोमीटर कम्युनिकेशन, नो नीड फॉर लाइन केबल एंड एबिलिटी टू कम्युनिकेट ओवर ओशियंस। क्लियर। तो ये सिंपल आपने एंटीना लगाया, लाइक जैसे हमारे पहले दूरदर्शन के लिए हम एंटीना लगाते थे, कोई केबल की ज़रूरत नहीं थी, वो सैटेलाइट के थ्रू ब्रॉडकास्ट होता था एंड यू आर एबल टू सी द टीवी। क्लियर। Now satellite, all of you know कि satellite communication use microwave media. Satellite like geostationary or polar satellites are used to establish communication link among various earth-based stations having antenna. Advantages क्या है कि geographical area of the earth करता है, लाइक जैसे अगर आप सैटेलाइट को देखो तो आपका GPS मोबाइल में ऑन होते ही वो सैटेलाइट के थ्रू आपका लोकेशन लोकेट कर लेता है। क्लियर। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत एक्सपेंसिव है, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट है, और ये स्लोअर है देन माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से, और इसको लीगल परमिशन की रिक्वायरमेंट है। क्लियर। नाउ ब्लूटूथ ऑल ऑफ यू नो कि इसका सिग्नल इस टाइप का होता है, ये आपके मोबाइल फ़ोन्स में होता है, ये एक रूम के अंदर ही कन्फाइडेड होता है, और इसकी रेंज ज़्यादा नहीं होती है, एंड यू आर एबल टू शेयर द फाइल्स एंड वीडियो एंड ऑडियो over the network. Clear. Wi-Fi, wireless fidelity is a full form of Wi-Fi. It is similar to the Bluetooth, but ये large area cover करता है 50 to 200 meters, और it offers network connectivity with mobility and it plays within its range. ये home में, offices में, buildings में, colleges में, university में, campuses में, cyber cafes में, ये हर जगह आपका use होता है। Clear? नाउ नेटवर्किंग डिवाइसेस, व्हाट आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस? अभी तक हमने पढ़ा कि नेटवर्क क्या होता है, विच मीडिया शुड बी यूज टू कनेक्ट दिस नेटवर्क्स, एंड व्हाट आर द ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया 2 टाइप्स की थी, वायर्ड और वायरलेस। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि विच डिवाइसेस आर यूज टू कनेक्ट दीज नेटवर्क, दीज ट्रांसमिशन मीडिया, इनका ट्रांसमिशन मीडिया को कनेक्ट करने के लिए विच डिवाइसेस शुड बी यूज सो दैट आर डाटा शुड बी ट्रांसफर्ड very easily and very clearly. So here are the equipment to transmit data over the communication channel are NIC network interface card, hub, switch, repeater, router, gateway and modem. Clear? Now I will teach you about this one by one in the next video. I hope you enjoy this. Clear?